So what I was telling was कि oops are mostly important when you have a lot of big code. Mostly जब भी you would be working in ROS or ROS based project, wherever ROS would be used, you will write lots and lots of lines of codes. And for in those codes, you will need much more components which are modular. Okay, so you will have to use functions. You have to use oops. You cannot make the same thing again and again. You cannot write a redundant code every time because then it would not be usable with other persons. So if you are collaborating with someone or if you are doing an open source project, then in those cases, this would be a very hard to use. So we, in general, go for oops or use object-oriented programming when we are using ROS. So for example, how is a class defined? So class is defined when yeah. So class is defined such as like class and the name of the class. Then there is a constructor function. So init is the constructor function for the class. In init, you in general define all the attributes. For a particular class, these are the attributes. Now, where are classes used? Classes are mostly used where you have to create same type of objects again and again. So, for example, I'm running a company, okay, I have a lot of employees, and every employee has some characteristics. So every employee has a name, he has a ID, maybe joining date, a salary, which I want to maintain. Okay, but everyone has same type of data in them. So I'll make a class employee, initiate all the same data, and then if I want something, so return salary or return, let's say, what would be the total income of the of or total package of the employee. So I can create a method. Okay. So from that method, I can use it and then maybe call it. And this method is same for every employee. Okay. So when you have to do this, wherever you have to use a code where major template is same for every particular instance. Template is same for every particular instance. You use classes. So that is what is the concept of classes. I guess many of you are familiar about the classes. This is the basic syntax in Python uh, regarding classes. We'll also send a refresher course about it. अभी के लिए इतना like we will go through very much ऊपर से कि क्या क्या होता है and how do we use it. ठीक है. Major thing is कि inheritance किस तरीके से use होती है. So before inheritance, let's go upon encapsulation. In encapsulation, you bundle data and methods inside a class and then restrict it restrict the data's access to different classes. Okay, so basically there are three types of access modifiers. Suppose you have named self.name. Okay, so you have a variable, you have access self.name. Okay, now if you are creating a class under a class, okay, so let me yeah. So if a class inherits a class, okay, इनहेरिट क्या होता है कि एक क्लास अपने पहले वाली क्लास से कुछ भी चीजें जो भी मेजर कैरेक्टरिस्टिक्स है उन्हें बोरो करिए. ठीक है. फॉर एग्जाम्पल जैसे यहाँ पे एनिमल है. सो आई नो कैट इज एन एनिमल बट कैट के लिए कुछ चीजें अलग होंगी. जैसे कैट के लिए स्पीक वुड बी डिफरेंट. कैट के लिए स्पीकिंग में इट वुड बी द वॉइस वुड बी म्याओ. बट आई नो द कैट का नेम एंड ब्रीड कुड बी सेम. लाइक ये चीजें तो हर एनिमल में रहेगी कि नेम हो गया तो ब्रीड हो गया या फिर जो बायोलॉजिकल टर्म्स होती है उसको डाल दो. ठीक है. तो जीनस वगैरह होता है स्पीशीज हो गया वो डाल दो. ठीक है. दीज वुड बी सेम फॉर एनिमल. सो व्हाट आई से इज कि दिस इज माय क्लास कैट. दिस इनहेरिट्स एनिमल क्लास जिसके ये एट्रीब्यूट्स है. अब मैंने इसी का अगर क्योंकि मैंने एनिमल क्लास लिया है तो फिर मैंने इसी का कंस्ट्रक्टर फंक्शन यूज कर लिया कि हर एनिमल का कुछ नेम रहेगा. ठीक है. मैंने वो नेम दिया. यहाँ पे नेम मैंने डिफाइन किया विस्कर्स. अब तुम यहाँ पे देखोगे यहाँ पे हैवंट डिफाइंड एनीवेयर कि कोई नेम होना चाहिए कुछ इनपुट आना चाहिए. बट बिकॉज इनिट फंक्शन इज इनहेरिटेड फ्रॉम एनिमल सो मैं यहाँ पे एक विस्कर्स नाम का नेम अपने कैट को दे रहा हूँ. ठीक है. बट अब जब मैं यहाँ पे स्पीक यूज करूँ तो स्पीक के लिए मैं सबसे पहले कैट क्लास में कैट क्लास में मुझे स्पीक मिल गया. ठीक है. मुझे एक मेथड स्पीक मिल गया तो वो क्या रिटर्न कर रहा है म्याओ. तो इसलिए मुझे वापस दे रहा है. अगर दिस वुड हैव बीन एन एनिमल क्लास लेट्स से कुछ और होता जिसमें स्पीक डिफाइन नहीं होता तो वो उसकी जो पेरेंट क्लास है पेरेंट क्लास यहाँ पे एनिमल है तो पेरेंट क्लास में जो जेनरिक एनिमल साउंड है वो रिटर्न करता है. ठीक है. तो अब इससे मैंने क्या किया. इससे मैंने जो सेल्फ डॉट नेम है
ये मेरा नेम सेट डॉट नेम इज बेसिकली एक्सेस थ्रू कैट का क्लास। ठीक है, इज इतना क्लियर विथ एवरीवन? बेसिकली जो भी कैट की क्लास है उसने एनिमल क्लास को एनिमल क्लास का एनिमल क्लास उसका पेरेंट है, एंड एनिमल क्लास में जो भी एट्रीब्यूट्स है सेल्फ डॉट नेम था वो उसने एक्सेस कर लिया। ठीक है, बट देयर माइट बी सम केसेस जब तुम्हें ये नेम एक्सेसिबल नहीं करा। सो फॉर एग्जाम्पल मैं कोई एक दूसरी क्लास बना रहा हूँ, सो आई एम मेकिंग, जैसे मेरी एम्प्लॉयज की क्लास है उसमें मैंने एक और क्लास बना दी कि एचआर। अब एचआर भी एम्प्लॉयज ही है। ठीक है, बट आई डोंट वांट ऑल द एचआर्स टू टेक द सैलरी, मतलब बस सैलरी की जो सैलरी वाला जो पार्ट है वो मैं एचआर क्लास में इनहेरिट नहीं करवाना चाहता, क्योंकि मेरा उससे पर्पज ही अलग है। ठीक है, तो मैं उसको प्राइवेट कर दूँ। तो प्राइवेट का क्या मतलब है कि कोई भी इनहेरिटेड क्लास या कोई भी क्लास लाइक जिस क्लास में ये नेम डिफाइंड है उसी में यूज हो सकता है ये वेरिएबल। सो इफ आई कैन यूज सेल्फ डॉट अंडरस्कोर अंडरस्कोर नेम ओनली वेयर इट इज डिफाइंड। इसके यहाँ पे दो बार अंडरस्कोर है। ठीक है, सिंगल टाइम का मतलब ये होता है कि तुम लाइक कोई इसको सिर्फ इसकी क्लास और इसके इनहेरिटेड जो क्लास है वो ही एक्सेस कर सकती है। कोई एक्सटर्नल क्लास इसको आके एक्सेस नहीं कर सकता। तो ये वैसे प्रोटेक्टेड वेरिएबल्स है। ठीक है, अगेन तुम्हें ज्यादा समझ नहीं आएगा आई नो, इसके लिए भी रिसोर्सेज भेज देंगे, एंड दिस इज लाइक लिटरली वेरी मच नॉट सो इम्पोर्टेंट इन दिस पर्टिकुलर कोर्स। बस इतना समझो कि हाउ डज इनहेरिटेंस वर्क। कैट वाज एन कैट इज एन एनिमल, तो इसलिए वो एनिमल क्लास को इनहेरिट इनहेरिट कर रही है। एनिमल इज इट्स पेरेंट। ठीक है, एनिमल के अंदर जो भी फंक्शंस है, जो भी एट्रीब्यूट्स है, वो सब भी उसके अंदर इनहेरिट हो रहे हैं। ठीक है, इतना कॉन्सेप्ट क्लियर रहना चाहिए कि ये वाली चीज क्लियर है सबको कि इनहेरिटेंस किस तरीके से वर्क कर रही है। कैन वी हैव बोथ पब्लिक एंड प्रोटेक्टेड नेम इन वन क्लास? सॉरी, नो मिनट, यू कैन नॉट हैव दिस टू वेरिएबल्स विद सेम नेम, अदरवाइज वो ओवरराइड कर देगा दूसरे को। बट यस, अगर तुम्हें अलग अलग करना लाइक नेम वन नेम टू कर दिया तो फिर इट वुड बिहेव एज डिफरेंट वेरिएबल्स। So you can have multiple types of variable. You can have protected ones, you have unprotected ones, you can have private ones too. मतलब ऐसे बाउंड्री नहीं है। बट यस, इफ यू हैव द सेम नेम लाइक अंडरस्कोर नेम एंड अंडरस्कोर अंडरस्कोर नेम दोनों यूज कर लिया तुमने, तो देन इट ओवरराइड्स। तो फिर वो इंटरप्रेटर लैंग्वेज है, तो फिर जो फर्स्ट जो सेकंड वाली लाइक जो लेटर लिखा गया है वो उसको ऊपर वाले लाइंस को ओवरराइड कर देता है। Okay, so give me a show of hands if you have understand inheritance, at least inheritance. Great. Okay, so the rest are in general stuff. ये पीपीटी में शेयर कर दूंगा। Until that, you can open your the construct.ai and start open your ROSDIct. ठीक है, तुम लोग सेटअप करो, मैं तब तक अपना लोग करूंगा। सो अब हम लोग शिफ्ट करेंगे टूवर्ड्स। ठीक है, सो आई टेल यू होल प्रोसेस की किस तरीके से हम लोग जा रहे हैं। तो उसके लिए फर्स्ट ऑफ ऑल ओपन योर द construct.ai का ROSDIct। Okay, I guess the screen is visible. Our screen is visible, right? Chat में बता दो। Can you all see the project? So just start with making your project and run it. ठीक है, then we can go on कि किस तरीके से हम काम करें।
क्या सब लोग इस स्टेट पे है कि दे हैव देयर विंडोज एंड टर्मिनल्स ओपन? गिव मी अ रेज ऑफ हैंड्स इफ यू आर एट दैट स्टेज। लाइक जैसे मेरा स्क्रीन दिख रहा है उसे तुम्हारा स्क्रीन दिख रहा है। So you need not to prove anything. We use GitHub tutorial, but for this one we go from uh, now. मैं 3 courses बनी हुई है। एंड फिर मतलब ऐसा है कि हम लोग तुम्हें अभी ने सोचा है कि फर्स्ट ऑफ ऑल ड्रॉ हाउ टू मीन like draw I mean the URL of your जो जो resources use है we need to make final literature. I'm audible and visible, right? Okay, so let's continue. So first of all, we'll make our first ROS workspace. So to make your workspace, in general, you have to make basically तुम्हें mkdir करना, अपनी directory बनानी, ठीक है? So I guess if you are very much comfortable with Linux commands, it is mkdir minus t. Uh, let's say my ROS2 workspace is named as ROS106 workspace. Let's say, okay, एंड उसके अंदर मैं एक सोर्स फोल्डर भी बना रहा हूँ। सो बेसिकली तुम्हारी रॉस 106 वर्कस्पेस इज योर ओवरऑल मेजर फोल्डर, मेजर डायरेक्टरी जिसके अंदर सारी चीजें वर्क कर रही होंगी, एंड द सोर्स वुड बी द पार्ट वेयर यू वुड बी कोडिंग योर, ठीक है? सो एवरी कोड, एवरी पैकेज वुड बी मेड, इट वुड बी स्टोर्ड इन द सोर्स, ठीक है? एंड देन गोइंग टू द सेम डायरेक्टरी, सो 6 and 6, ठीक है? सो करेंटली यू आर इन योर सोर्स डायरेक्टरी, ठीक है? अब सोर्स डायरेक्टरी में तुम एक बार आ गए, देन यू नीड टू मेक अ पैकेज। व्हाट इज अ पैकेज? अब देखो बेसिकली टू अ प्रोग्राम वर्क देयर आर डिफरेंट एग्जीक्यूटेबल फाइल्स। सो लेट्स से इफ आई वांट टू, हमारा एंड गोल क्या है? हमारा एंड गोल है वी नीड टू यूज अ रोबोटिक हैंड एंड उससे हमें पिक एंड ड्रॉप करना है एक बॉक्स, ठीक है? तो अब मुझे क्या है, इसके लिए मैं ऐसा तो करूंगा नहीं कि एक ही बड़ा सा प्रोग्राम बना दिया जिसके अंदर मैं सारे के सारे कंपोनेंट्स डाल दिए कि इसी से सब कुछ हो रहा है, इसी से लाइक बॉट भी चल रहा है, इसी से एनवायरनमेंट भी स्पॉन हो रहा है, इसी से पिक एंड ड्रॉप वाली सर्विस भी आ रही है, ठीक है? नहीं, आई ट्राई टू मेक माई मोर होल कोड मॉड्यूलर, ठीक है? ओके फाइन। Is my is my audio clear? Is it clear now?
सो सबने अपना वर्क स्पेस बना लिया पहला. यू कैन गिव इट एनी नेम. So the next task is to make the ROS package. ROS package are made in two parts. Either it could be made in CMake, जो basically it could be made in CMake, जो basically it is part of CPP types library. ठीक है. जहाँ पे भी CMake is used when तुम CPP में most code कर रहे हो तो तब वहाँ पे हम लोग in general prefer करते हैं कि हम CMake का use करें. Even I am comfortable with CMake, but yes, there are Python अभी के लिए because everybody over here is used with Python codes. So we'll go with the Python. Okay, so to make any of your packages, so to make any of your packages, first of all, ensure that you are in the source directory. Okay. Once you're in the source directory, you can use the command ROS2 package create like pkg and create minus minus amend Python. Sorry, minus minus build type amend Python. This makes like what is build type? Basically, either it could be made in CMake or it could be made in Python. तो दोनों के structures अलग अलग होते हैं. So if I can show you the structure. Yes. So see, अगर जब तुम CMake से बना रहे हो तो अपनी library, तो you have different packages. So either it could be Py package, which is Python वाला, or it could be CPP package. So these are the files which basically define your workspace की configuration. Sorry, your package की configuration files. So package.xml would have everything which is every library which is important to be in your like जो भी तुम code में use करोगे. So every library which is name is declared in the package.xml. So that if anybody else has to use the same code, then they can just download all the dependencies once for the package and not for the whole project once. Okay. Then there are resources where you would be putting dumping your all the resources needed for your uh, scripts which are used in your Py package. So basically, this is the name of package, and this is a folder inside the name of the package where all your scripts. The other files are just configuration files and setup files with resources and dependencies. I hope इतना clear है सबको. नहीं अभी कोड कंप्लीट नहीं हुआ है. This is just a part of the code. ROS2 package create ROS2 package create minus minus build type declares the build type. It is amend Python. Then you need to give the license. ठीक है. अब तुम लाइसेंस अपने आप से डाल रहे हो तो या फिर मोस्टली अपाचे 2.0 यूज हो रहा है जो अभी हम लोग कर रहे होंगे सिंस दीज फाइल्स आर ऑलरेडी लाइक जो हम चार्टर एंड डॉकर बना रहे हैं इट इज डिक्लेयर्ड बाय अपाचे 2.0 तो फिर हम लोग उसी में यूज कर रहे हैं एंड देन पैकेज. ठीक है. सो कैन यूज माइनस माइनस लाइसेंस and let's say my package name is package pack1. ठीक है. And then press it. ये इसमें हमें पाइथन है. वेल डन.
पैकेज नेम पे क्या, पैकेज नेम में कुछ भी लिख दो। शिट, सॉरी गाइस, यहाँ पे थोड़ा सा अंडरस्कोर आएगा। आई जस्ट फॉरगॉट दिस। थोड़ी गलतियां होती रहती है, सो ये ध्यान रखना। सो सॉरी, रॉस टू पैकेज क्रिएट माइनस माइनस बिल्ड माइनस टाइप अमेंड अंडरस्कोर पाइथन एंड देन माइनस माइनस लाइसेंस अपाचे 2.2। और यहाँ पे तुम कोई भी अपना नाम लिख सकते हो, जैसे मैंने अभी नाम दे दिया पैक वन। सो दिस इज योर पैकेज का नेम। इज दिस फाइन विद एवरीवन? तो अब तुम लोग अपना कोड एडिटर खोल के देख लो। Uh, क्या सब लोग स्टेज तक पहुंच गए जहाँ पे दे हैव पुट दिस पर्टिकुलर कमांड? Shikhar, I switched it. Sorry, I didn't notice it at the first point. I hope everybody has used this command. एक बार check कर लेना where minus is being used and where underscore is being used. In the meanwhile, you can open your code editor parallelly. तब तक हम एक बार structure पे चले जाते हैं कि how does your like overall directory looks like. So now you are in your ROS 106 workspace, जिसमें तुम source में हो, ठीक है? Source में you are doing every code, and in that source you have made a package. इस package का नाम है pack1. Now this is a folder. You can cd into pack1 and to see कि क्या क्या चीजें है उसमें. So if you go into your package, you can see there's another folder with the same name. जो तुम्हारे पैकेज का नेम है उसी सेम नेम से एक फोल्डर है. अब इस फोल्डर में क्या हो रहा है, इस फोल्डर में पुट एवरी या सो इस पैकेज में क्या हो रहा होगा कि तुम इस जो फोल्डर है इसमें तुम अपनी जितनी भी स्क्रिप्ट्स है वो सब रख दोगे. देन यू हैव package.xml. ओके, व्हाट डज package.xml हैव? package.xml में तुम लोग जितनी भी चीजें हो रही है, जितनी भी डिपेंडेंसीज है, ठीक है, एवरीथिंग इज डिफाइंड इनटू package.xml. Then you have resource, जिसके अंदर तुम सारे assets डाल रहे होते हो, whichever is needed for the scripts in pack1. These are some config files and these are the test files. uh, Also, you can open your IDE once. जैसे IDE start with, we can proceed with the further coding part.
ओके, सो यू कैन सी तुम्हारे पास ये तुम्हारा डायरेक्टरी का स्ट्रक्चर होगा. यू वुड बिन रॉस 106 वर्क स्पेस, जिसमें सोर्स होगा एंड जिसमें पैकेज वन होगा. ठीक है. अब उस पैकेज वन में यू वुड हैव एक अलग फोल्डर जिसमें इनिट फाइल्स होंगी, एक रिसोर्सेज वाला फोल्डर होगा जो मोस्टली जो कॉन्फ़िगरेशन फाइल उनके साथ पैक्ड है, एंड एक टेस्ट वाला होगा. ठीक है. these are some copyright tests, so these are by default generated by your ROS. You can ignore them. Licenses are generally defined over here. इन सब चीजों को छेड़ने की कोई जरूरत नहीं है. ठीक है. वी हैव नथिंग टू डू विद दैट. ठीक है. अब लेट्स कम अपॉन पैकेज डॉट एक्सएमएल. पैकेज डॉट एक्सएमएल में देखो क्या क्या चीज है. पैकेज डॉट एक्सएमएल में बेसिकली जो भी तुम्हें डिपेंडेंसी चाहिए, जैसे वी यूज अमेंट पाइथन. ठीक है. सो वी आर हैविंग दैट बिल्ड टाइप ओवर हियर. ओके. जो टेस्ट डिपेंडेंसीज थी जिसके लिए तुम्हें चाहिए थे, तो वो चीज हमने यहाँ पे डिफाइन की हुई थी. वी डिफाइंड द लाइसेंस ओवर हियर. वी डिफाइंड मेंटेनर्स का यूजर ईमेल. नाउ बी अवेयर कि जो तुमने यहाँ पे ईमेल यूज किया है अपना एज अ मेंटेनर, ये चीज हर जगह पे फॉलो नहीं की है. सो फॉर एग्जाम्पल लेट मी शो यू. हाँ, सो सी जो सेटअप डॉट पाई है, यहाँ पे तुम्हारे पास तुमने एक मेंटेनर ईमेल दिया होगा. ओके. सो ये चीजें अक्रॉस डिफरेंट फाइल्स जैसे पैकेज डॉट एक्सएमएल सेट पैकेज डॉट एक्सएमएल और सेटअप नहीं होते हैं, तो इनमें ये चीजें सेम रहनी चाहिए. अगर ये डिफरेंट रहेंगी देन तुम्हारे लिए बीटी हो जाएगी. So is everyone following with me till here? You can give me a raise of hands. क्या सबको यहाँ तक सब कुछ क्लियर है? इफ यू हैव एनी डाउट्स तो अब एक बार डाउट्स ले लेते हैं. चलो. Anybody has issue in between? Okay, cool. That's totally fine. ठीक है. ठीक है. ओके, अभी यहाँ तक सबको ये क्लियर हो गया कि कैसे कैसे क्या क्या फाइल स्ट्रक्चर है तुम्हारा. नाउ वील गो इनटू मेकिंग आवर फर्स्ट पब्लिशर. नाउ व्हाट इज अ पब्लिशर? सो इन लास्ट लेक्चर तुमने ये देखा होगा, वी यूज अ चार्टर, वी यूज अ टॉकर. लाइक इन द चार्टर वी हैड टॉकर एंड लिसनर. ठीक है. सो टॉकर क्या कर रहा था? टॉकर एक बेसिकली जो तुम्हारा मैसेज था हेलो वर्ल्ड वाला एंड आई वाला मैसेज था. ठीक है. वो मैसेज एक नोड के ऊपर भेज रहा था एंड उससे लिसन कर रहा था हमारा लिसनर. ठीक है. ये पूरा ओवरफ्लो था, ये पूरा वर्कफ्लो था इन द लास्ट लेक्चर जो तुमने देखा. ये बिहाइंड द सीन्स हो रहा था. ठीक है. तुम्हें नहीं पता, तुमने बस कुछ कमांड डाला एंड यू सॉ देयर वाज अ टॉकर, देयर वाज अ लिसनर. यहाँ से कमांड्स आ रहे, यहाँ से मैसेजेस जा रहे थे एंड दिस वाज कैप्चरिंग द मैसेज. राइट. अब हम उस चीज को प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट करना देखेंगे कि ये प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट कैसे होता है. सो दिस इज इम्प्लीमेंटेड यूजिंग पब्लिशर एंड अ सब्सक्राइबर. व्हाट इज अ पब्लिशर? सो बेसिकली यू मे हैव अ नोड. एक नोड होगी तुम्हारे पास जिसके ऊपर तुम लोग नोड या टॉपिक बोलो, तो इस टॉपिक के ऊपर तुम अपना मैसेज पब्लिश कर रहे हो. ठीक है. इसके ऊपर जैसे फॉर एग्जाम्पल तुम सोच सकते हो एज अ प्रिंट बोर्ड या फिर नोटिस बोर्ड जो होता है स्कूल में. ठीक है. उस एनालॉजी के ऊपर जाए तो नोटिस बोर्ड के ऊपर जाके तुमने मल्टीपल मैसेजेस डाल दिए. ठीक है. अब एक लिसनर होगा, इट इज अनदर स्ट्रिप, इट इज अनदर पर्सन. ठीक है. जो जाके उस चीज को पढ़ेगा, आई वुड ग्रास्प. ठीक है. उसका फिर यूज करना है जो करना है, दैट डिपेंड्स. इतना क्लियर है सबको? सो नाउ वील गो ऑन मेकिंग अ पब्लिशर फ्रॉम आवर. हम पब्लिशर कैसे बनाएंगे? जैसे मैंने अभी तक किसी भी फाइल को छेड़ा नहीं यहाँ पे. ठीक है. जो रॉस पैकेज हमने बनाया था उसके बाद से सब चीजें सेम है. अब तुम देखो रॉस 106 के वर्क स्पेस में, सोर्स में, पैक वन में जो तुम्हारा पैकेज वाला ये है. ठीक है. अब इसमें यू विल मेक अ न्यू फाइल. लेट्स से दिस न्यू फाइल इज पब्लिश माय पब्लिशर. डाल माय पब्लिशर, माय पब्लिशर डॉट पी वाई. सो ऑल्सो रिमेंबर कि इसको ऐसे डायरेक्टली पब्लिशर नहीं डालना. कुछ डायरेक्ट जो बेसिकली जनरल टर्म्स है, जेनेरिक टर्म्स है, ये सब चीजें नहीं यूज करना होता, क्योंकि फिर इट मे हैपन कि ये किसी और फाइल से कोलाइड कर जाए
या फिर जो डिफॉल्ट फाइल्स हैं उनके साथ कोलाइड करता है, ठीक है। इन दैट केस यू मे फेस इश्यूज। तो अब वी हैव माय पब्लिशर डॉट पी वाई ओवर हियर, ठीक है। अब यहाँ से हम इसकी कोडिंग वाला पार्ट स्टार्ट कर सकते हैं। सो नाउ व्हाट गोस फर्स्ट इन दिस। सबसे पहले तुम जितने भी इंपोर्ट से वो कर रहे हो, ओके। सो जेनरिक इंपोर्ट्स आर इंपोर्ट आरसीएल पाई। व्हाट इज आरसीएल पाई? आरसीएल पाई इज योर रॉस की क्लाइंट साइड लाइब्रेरी, ठीक है, विच इज डिफाइंड इन पाई। सो रॉस की जितनी भी क्लाइंट साइड चीजें होती है, क्लाइंट साइड चीजें क्या क्या होती है? पब्लिशर हो गया, पब्लिशर, सब्सक्राइबर, सर्विसेज, टॉपिक्स, नोट्स, एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ठीक है। ये सारी जितनी चीजें हैं, मैसेज, ये सारी जितनी चीजें हैं, ये सब आरसीएल पाई के अंदर डिफाइन होती है, ठीक है। सो इसलिए यू इंपोर्ट आरसीएल पाई एंड देन उसके बाद यू आरसीएल पाई में अलग अलग चीज होती है एंड देन यू यूज दोस थिंग्स फ्रॉम आरसीएल पाई। तो जैसे अभी आरसीएल पाई में से मेरे लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि मैं एक नोड क्रिएट करूँ, ठीक है। तो उसके लिए मुझे नोड को इंपोर्ट करना पड़ेगा, ठीक है। तो आरसीएल पाई का एक पैकेज जिसमें नोड डिफाइंड है एंड उसमें से हम बेसिकली नोड क्लास यूज कर रहे हैं, ठीक है। तो इस नोड क्लास में कुछ बाय डिफॉल्ट फंक्शंस होते हैं जिन्हें हमें आगे यूज करना होगा। तो इसलिए हम इसको इंपोर्ट कर रहे हैं। अगेन, तुम कोई भी पब्लिशर बना रहे हो, पब्लिशर क्या करता है? पब्लिशर उस नोड के ऊपर जाके अपना चीज पब्लिश कर रहा है, ठीक है। वेराज जो सब्सक्राइबर है वो उसको जाके बेसिकली लिसन कर रहा है, उसके ऊपर जो भी कंटेंट है उसको एक्सेस कर रहा है। सो हाउ दिस इज टोटली वर्किंग कि तुम्हारे पास एक नोड है एंड उसके नीचे दो चिल्ड्रन है, ठीक है। देयर इज अ नोड एंड देन देयर आर टू चिल्ड्रन। सो दिस पर्टिकुलरली वर्क्स विद द कॉन्सेप्ट ऑफ इनहेरिटेंस। सो अगर इस तरीके से, सो माय पब्लिशर वुड बी अ चाइल्ड ऑफ नोड क्लास। क्या सबको इतना क्लियर है? गिव मी अ रेज ऑफ हैंड्स इफ यू आर क्लियर विद दिस। माय पब्लिशर और माय सब्सक्राइबर वुड बी अ चाइल्ड ऑफ द नोड क्लास। बाय, बिकॉज हमें उसके ऊपर पब्लिश करना, हमें जितनी भी प्रॉपर्टीज है नोड की वो सब चीजें एक्सेस होगी, ठीक है। सो इट वुड बी अ चाइल्ड ऑफ नोड क्लास। तो लेट्स डिफाइन वन ऑफ आवर पब्लिशर्स। मैं बोल देता हूँ क्या नाम रखना है, कुछ भी रख देता हूँ। सो क्लास, let's say my first publisher, my first publisher, ठीक है। Now this class would inherit the node class, ठीक है। नोड को हमने इंपोर्ट कर लिया था हमारे आरसीएल पाई मॉड्यूल से। अब सबसे पहले इट इज अ क्लास, तो इसका कंस्ट्रक्टर फंक्शन बनाएंगे, ठीक है। अब कंस्ट्रक्टर फंक्शन में हमें क्या क्या चीजें डिफाइन करनी है? तो सबसे पहले हम एक नोड बना रहे होंगे इस कंस्ट्रक्टर फंक्शन में, बिकॉज मुझे एक नोड के ऊपर अपने जितना भी डेटा है उसे पब्लिश करना है। प्रियांशु, द आरसीएल पाई का फुल फॉर्म है रॉस टू क्लाइंट लाइब्रेरी, ठीक है। सो जितने भी क्लाइंट साइड चीजें होती है, क्लाइंट आर अस, जितने भी क्लाइंट्स लाइक जो डायरेक्टली रोबोट के ऊपर वर्क कर रहा होगा। सो जितने भी क्लाइंट साइड लाइब्रेरी जो जैसे पब्लिशर हो गया, सर्विस हो गई, इन सब चीजों को यूज करने के लिए, और नोड्स हो गए, इन सब चीजों को यूज करने के लिए कुछ मेथड्स, कुछ प्री डिफाइंड क्लासेस, कुछ प्री डिफाइंड फंक्शंस डिफाइन किए हुए इन द आरसीएल पाई लाइब्रेरी, इसलिए हम उसे इंपोर्ट कर रहे हैं, और ठीक है। If the publisher is a child of node class, then why do we need init? Basically node are used multiple places, ठीक है। So I need init to define node as well as to get some more data in my publisher. So see, why is the init used to make more attributes to the given publisher, ठीक है। So whatever publisher you are making, it will be a very unique publisher। मतलब तुम हर पब्लिशर में अलग अलग चीजें चाहोगे, राइट?
So you would inherit some things from your node and rest would be defined as मतलब तुम्हारे कन्वीनियंस, ठीक है. सो लेट्स से अगर हम लोग हमें यहाँ पे डिफाइन करना है, तो आई वुड गो विद सुपर. सुपर का मतलब है कि इसका पेरेंट, माय फर्स्ट का पेरेंट कौन सा नोड है, ठीक है. तो मैं पहले उसका इनिट लाऊंगा. तो मैंने उसका इनिट ले आया एंड उसमें मैंने कुछ भी लाइक मतलब एक टॉपिक में डिफाइन कर दिया, ठीक है. माय फर्स्ट पब ही डाल देते, चलो माय फर्स्ट. ओके, सो दिस वुड बी योर नोड जिसके ऊपर तुम डिफाइन कर रहे हो. इस नोड के ऊपर तुम अपना पूरा पब्लिशर डिफाइन कर रहे होंगे. सो या सो ओके, सो इट एड्स टू द इनिट ऑफ द एग्जैक्टली मतलब बेसिकली अब मैंने जितने भी नोड में इनिट एट्रीब्यूट्स थे वो मैंने इस चीज से डिफाइन कर लिए एंड उसको मैंने माय फर्स्ट पब्लिशर में इनहेरिट कर लिया. नाउ व्हाट आई व्हाट नाउ व्हाट वुड बी माय द व्हाट वुड बी माय नेक्स्ट स्टेप कि मैं जो अपना पब्लिशर है उसके लिए मैं क्या क्या डिफाइन करना चाहूंगा. तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं एक पब्लिशर कॉन्स्टेंट डिफाइन करना चाहूंगा, ठीक है. रिमेंबर आई हैव यूज्ड ओवर हियर अंडरस्कोर, अदरवाइज वन यूज कर लेते चलो. Like this is a variable. Don't use publisher over here. Don't use publishers over here. Like वो keywords हैं, so that may interfere again with like again with Python default libraries, तो error देगा. अब मुझे यहाँ पे publisher create करना है. So what would I do is self dot create publisher. Okay. So you can see there are different things which are over here. You can create publisher, guard condition, rate, service, timer, etc. 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 If you remember, we had a count subscribers जब हम लोग टर्मिनल वाली चीजें देख रहे थे, ठीक है. अभी हमें पब्लिशर यूज करना है. सो वी यूज अ सेल्फ डॉट क्रिएट पब्लिशर कमांड. अब इसमें क्या क्या चीजें जाएंगी. इसमें आएगा मैसेज टाइप. फर्स्ट ऑफ ऑल लिखा उसने मैसेज टाइप. अब मैसेज क्या होता है, ठीक है. जैसे अब हमारा जो टॉकर वाला पब्लिशर था, ठीक है, उसमें हमारा मैसेज क्या आ रहा था, एक स्ट्रिंग जा रही थी which was okay, is it clear? मतलब जो हेलो वर्ल्ड जा रही थी, सो इट वाज अ स्ट्रिंग टाइप, राइट. जो मेरा डेटा जा रहा है, सो माय ओवरऑल डेटा इज ऑफ स्ट्रिंग टाइप. तो आई वुड डिफाइन दोज मैसेजेस. बट क्या ये सेम टाइप होता है जो पाइथन में होते टाइप्स, कि पाइथन में जो स्ट्रिंग टाइप है, इन टाइप है, वो सेम टाइप होते हैं? नहीं. वी हैव सम मैसेजेस प्री डिफाइंड इन रॉस जिनका हम यूज कर रहे होंगे. सो उसके लिए मैं एक इंपोर्ट करूंगा. तो वी हैव स्टैंडर्ड मैसेजेस फ्रॉम std messages dot msg import. इसका क्या मतलब है कि इसका क्या मतलब है, जो तुम्हारे पास स्टैंडर्ड मैसेजेस है इन रॉस, तुम अपने कस्टमाइज मैसेजेस भी बना सकते हो. इन फर्दर कोर्स वी विल सी टू मेक योर कस्टमाइज मैसेज, ठीक है. बट अभी के लिए हम उन मैसेज जो स्टैंडर्ड मैसेजेस हैं उनमें से मैसेज निकालेंगे एंड उसमें एक टाइप है स्ट्रिंग, उसका हमें यूज करना है, ठीक है. सो अब यहाँ पे मैं डाल दूंगा कि जो मेरा प्रेफर टाइप है वो स्ट्रिंग है, ठीक है. सो आई एम डन विद द फर्स्ट पैरामीटर व्हिच इज व्हाट इज योर मैसेज का टाइप. जो तुम अपने पब्लिशर या अपने नोड के ऊपर पब्लिश करना चाहते हो उस चीज का टाइप क्या है, ठीक है. इतना क्लियर है सबको? थम्स अप और हैंड रेस कर दो. नहीं डाउट स्टिल है. ठीक है. सो ओके, सो यहाँ तक सबको क्लियर है. देन फर्दर नेक्स्ट पैरामीटर फॉर अस इज टॉपिक, ठीक है. अब टॉपिक क्या है, जो भी तुम टॉपिक का नेम देना चाहो, ठीक है. मैं अभी टॉपिक का नेम टॉपिक ही दे देता हूँ, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता. तो अब जब तुम टॉपिक लिस्ट शो कर रहे होंगे, ठीक है. टॉपिक लिस्ट शो करने का क्या है, टॉपिक लिस्ट जब तुम शो करोगे तो किस टॉपिक के ऊपर ये चीज पब्लिश हो रही है, किस टॉपिक के थ्रू पब्लिश हो रहा है, उस टॉपिक का नाम रहेगा ये, ठीक है. तो whenever you would be accessing your listener, ठीक है, तो हम इस टॉपिक को यार, सो रिमेंबर कि एक टॉपिक नाम की कोई चीज थी एंड इस टॉपिक नाम की चीज से लाइक ये टॉपिक के ऊपर तुम्हारा जितने मैसेज हो जा रहे हैं
तो जब लिसनर आएगा ना, तो लिसनर इस टॉपिक से रिक्वेस्ट करे, ठीक है। इट वुड नॉट रिक्वेस्ट टू द नोड डायरेक्टली, इट वुड रिक्वेस्ट द टॉपिक फर्स्ट जिसके ऊपर हम पब्लिश कर रहे हैं, एंड देन उसके बाद हम मतलब हम अपना लिसनर यूज करें, ठीक है। The third and important parameter is QoS profile. QoS profile is quality of service profile. इन जनरल यहाँ पे तुम डाल दो तो कि किस तरीके से तुम्हारे लाइक हाउ मेनी टोटल नंबर ऑफ क्यू साइज क्या तुम्हारा, ठीक है। सो क्वालिटी ऑफ सर्विस इज डिफाइंड एज क्यू साइज, एंड क्यू साइज में कि कितने नंबर ऑफ क्यूड मैसेजेस रहेंगे अगर सब्सक्राइबर फास्टली रिसीव नहीं कर पा रहा, ठीक है। तो पहले मैं चाहूंगा यहाँ पे कि मेरे 10 मैसेजेस क्यू रहे, ठीक है। उसके बाद दे कैन लाइक मे बी इट मे बी यूज, इट मे नॉट बी यूज, इतने क्यू में रहे जब तक मेरा पब्लिशर सॉरी मेरा सब्सक्राइबर इज नॉट सब्सक्राइबिंग द पब्लिशर, ठीक है। फाइन विद एवरीवन। तो यहाँ से मैंने अपना पब्लिशर डिफाइन कर दिया, अब मुझे अपने पब्लिशर से कुछ काम कराना, ठीक है। तो अभी मेरा पर्पस क्या है काम कराने का, आई एम थिंकिंग कि हमने जो हेलो वर्ल्ड वाला मैसेज पहले लिखा था, जो हम लोग टॉकर से करा रहे थे, मुझे वही इम्प्लीमेंट करना है, ठीक है। जैसे वो मैसेज था जिसमें हम लोग मल्टीपल टाइम्स हेलो वर्ल्ड आई, जो भी टाइम है वो जा रहा है, ठीक है। तो उसी का यूज करेंगे। अगर मुझे उसका यूज करना है, क्यू वाला समझ नहीं आया, तो यार देखो क्यू में जो क्यू का नंबर क्या, क्यू क्या है कि एक लाइन लगी, ठीक है। अब जैसे तुमने टॉकर से तो डाल दिया कि तुम मल्टीपल कमांड्स डाले आ दो, ये यहाँ से पब्लिश किए जा रहे हैं, बट अगर उसका डेटा को सब्सक्राइब करने वाला कोई लिसनर है ही नहीं, डेटा सब्सक्राइब करने वाला कोई सब्सक्राइबर नहीं है, ठीक है। तो एक क्यू बन जाएगी, राइट। तुमने उसको पुश तो कर दिया, बट कितने यूज होने चाहिए, कुछ एक्सेस ही नहीं हुए। तो उस क्यू का जो साइज है वो डिफाइन करते हैं हम क्वालिटी ऑफ सर्विस में, ठीक है। सो दैट इज द, क्या ये क्लियर है? अभी के लिए तुम उसको इग्नोर भी कर सकते हो, इन जनरल तुम जनरल पैरामीटर्स यूज कर लोगे उस समय, तो इट इज अगेन नॉट सो इम्पोर्टेंट राइट नाउ, बट हाँ थोड़ा सा ओवरव्यू, मतलब 10 के बाद पब्लिश नहीं होगा। तो अगर नेक्स्ट मंथ फिर डिले नहीं होगा, सिंस वहां पे मतलब वो फिर अगेन तुम्हें जितना चाहिए, अगर तुम्हें चाहिए मैं अगर कोई ऐसा केस होगा कि मैंने 10 कमांड दे दी है, बट उसके बाद मेरा रोबोट एक्सेस ही नहीं कर रहा, तो मूव ही नहीं कर रहा, मतलब उसने कहीं ना कहीं सब्सक्राइब नहीं किया, तो आई वुड नॉट वांट ना कि और ज्यादा कमांड्स आ जाए एंड एकदम से फिर जब एक्सेस करने लगे तो एकदम से क्यू सब कुछ भी डिजास्टर हो सकता है उस केस में, ठीक है। इट वुड बिहेव वेरी वियर्ड। सो दीज आर जस्ट सेफ्टी पैरामीटर्स, ओके। ठीक है, तो दैट्स गुड। हाँ, आज के लिए हमारा टास्क है कि हम पब्लिशर में बेसिकली जो हमने लास्ट टाइम किया था कि टॉकर से हम हेलो वर्ल्ड प्रिंट करा रहे थे, हेलो वर्ल्ड विद द टाइम प्रिंट करा रहे थे, हम वो हम यहाँ पे क्रिएट करने की ट्राई करेंगे, ठीक है। सो उसमें क्या था, उसमें वो हर 1 सेकंड में या आधे सेकंड में एक मैसेज क्रिएट कर रहा था, तो इट वॉज यूजिंग अ टाइमर फंक्शन, ओके। सो हम यहाँ पे एक टाइमर फंक्शन यूज कर रहे होंगे, सो लेट मी डिफाइन सम टाइमर, ठीक है। सेल्फ डॉट टाइमर, ओके। सो अब सेल्फ डॉट क्रिएट टाइमर क्या कर रहा है कि ये तुम्हारे फंक्शन में लाइक तुम्हारे प्रोग्राम में एक टाइमर करके बेसिकली पूरा ओवरऑल लूप क्रिएट कर रहा है, जिसमें अगर मुझे कोई कॉल बैक मैसेज, अगर मुझे कोई फंक्शन को रिपीट करना है, ठीक है। सो इफ एवरीबडी इज फेमिलियर विथ आर्डिनो, राइट, आर्डिनो के कोड से सब लोग फेमिलियर है, राइट। तो उसमें जिस तरीके से उसमें जो लूप फंक्शन काउंट वर्क कर रहा होता है कि एक बार लूप तुमने डिफाइन कर दिया हर एक टाइम पे, उसमें वैसे टाइम नहीं डिफाइन करते, बट हम लोग अगर डिले डाल ले तो हर 1 सेकंड के बाद ये पूरा फंक्शन वापस से रिपीट हो रहा है, ठीक है। तो वही चीज यहाँ पे हमारा सेल्फ डॉट क्रिएट टाइमर कर रहा है। वो क्या कर रहा है यहाँ पे, वो यहाँ पे ये काम कर रहा है कि लेट से मुझे 0.5 सेकेंड्स पे अपना एक कॉल बैक फंक्शन है उसको यूज करना है, ठीक है। सो लेट से माई कॉल बैक फंक्शन इज सेल्फ डॉट टाइमर कॉल बैक, ओके।
एंड अब मैं इस फंक्शन को यहाँ पे डिफाइन कर देता हूँ। ठीक है, सो मैंने यहाँ पे एक टाइमर फंक्शन, एक टाइमर कॉल बैक डिफाइन कर दिया। ठीक है, क्या सब लोग हैं यहाँ पे? ओके, सो मैंने यहाँ पे कॉल बैक फंक्शन डिफाइन किया है। अब ये कॉल बैक फंक्शन क्या कर रहा है? दिस कॉल बैक फंक्शन बेसिकली प्रिंट्स, बेसिकली creates a message. This message is hello world colon and self dot I. What is self dot I? ये तुम्हारा लाइक नंबर, लाइक nth नंबर ऑफ हेलो वर्ल्ड। ठीक है, हेलो वर्ल्ड 1, हेलो वर्ल्ड 2, हेलो वर्ल्ड 3। ठीक है, तो मैं वो एक फंक्शन क्रिएट कर रहा हूँ कि ये इस तरीके से मुझे अपना डेटा प्रिंट कर सके। एंड हाँ, इसके बाद एक बार मैं सेल डॉट आई को +1 भी। अब इसने क्या किया पूरा, लेट मी अगेन। ठीक है, हाँ, तो इसमें यहाँ पे क्या डिफाइन किया मैंने कि मैंने एक टाइमर फंक्शन बनाया। ये टाइमर फंक्शन क्या करेगा? ये टाइमर फंक्शन एक ओवरऑल टाइमर टाइप का फंक्शन क्रिएट करेगा, जिसका पर्पस क्या होगा कि हर 0.5 सेकेंड, हर 0.5 सेकेंड्स पे वो एक कॉल बैक फंक्शन को कॉल करेगा। ठीक है, मेरा कॉल बैक फंक्शन ये एक फंक्शन बना दिया मैंने, और इसको ये हर 0.5 सेकेंड्स पे कॉल करेगा। ठीक है, अब मैं इस फंक्शन में आता हूँ। इस फंक्शन में क्या किया मैंने, सोचा एक मैसेज बनाते हैं। ठीक है, मुझे कौन सा मैसेज प्रिंट करना है, कौन सा मैसेज मुझे टॉपिक के ऊपर डालना है। ठीक है, इनको हम अपने देखने के लिए कर रहे हैं। ठीक है, दैट इज अनदर थिंग। बट मुझे कौन सा मैसेज अपने टॉपिक के ऊपर पब्लिश करना है। ठीक है, उसको मैंने एज अ स्ट्रिंग डिफाइन कर लिया, क्योंकि हमें स्ट्रिंग मैसेज डालना था। फिर हम यहाँ पे उस स्ट्रिंग के अंदर डेटा क्या होगा। ठीक है, सो क्योंकि स्ट्रिंग इज अ ओवरऑल, देखिए एक क्लास है। ठीक है, अगर मैं इसकी डेफिनेशन पे जाने की ट्राई करूँ, सो सी, दिस इज योर स्ट्रिंग क्लास। जो स्ट्रिंग क्लास मैंने अपने स्टैंडर्ड मैसेजेस से ली थी। तो अब इसके अंदर चीजें क्या क्या, फील्ड्स है, डेटा। क्योंकि स्ट्रिंग है तो स्ट्रिंग में सिर्फ डेटा ही होता है और कुछ नहीं होता। हम कुछ और भी ट्राई कर सकते हैं। लेट्स से अगर स्टैंडर्ड मैसेजेस और मैसेजेस में लेट्स से इफ यू यूज, सी तुम्हारे पास मल्टीपल चीजें, यू कैन यूज इंट, यू कैन यूज अरेज, लाइक फ्लोट्स, बूल्स, कुछ भी यूज कर सकते हो। ठीक है, तो मान लेते कलर RGB ये यूज कर रहा है। and if you just go on this function, on this जैसे इसके पैरामीटर्स होते हैं RGB या नहीं। ठीक है, RGB कलर के तुम्हारे पास ये पैरामीटर्स, वैसे स्ट्रिंग के पैरामीटर्स है उसका डेटा, उसके अंदर क्या क्या स्ट्रिंग के कंटेंट जा रहा होगा। ठीक है, ऐसे तुम लोग अलग अलग मैसेजेस बना सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने वही किया है, एक मैसेज बनाया मैंने जो स्ट्रिंग टाइप का होगा। उस स्ट्रिंग टाइप के मैसेज में कुछ डेटा होगा। वो डेटा होगा बेसिकली हेलो वर्ल्ड टाइम्स उस टाइम पे जो आई है। आई को मैंने एज अ अपना फंक्शन, एज अ क्लास वेरिएबल, क्लास एट्रीब्यूट डिफाइन कर दिया है, ताकि जितनी बार भी जितनी बार भी
मेरा मेरा कॉल बैक फंक्शन कॉल हो रहा है, ठीक है। उस बार में मेरा सेल्फ डॉट आई प्लस इक्वल टू 1 भी हो जाएगा, ताकि मैं इसको स्टोर कर सकता हूँ एक पॉइंट पे, ठीक है। ताकि जब नेक्स्ट टाइम आई एम एक्सेसिंग आई, इट इज नॉट गेटिंग डिमिनिश्ड इन दिस पर्टिकुलर फंक्शन, ठीक है। ये फंक्शन एक बार कॉल हो गया तो आई खत्म हो जाएगा, बट बिकॉज आई वांट टू यूज इट अगेन एंड अगेन, सो आई हैव क्रिएटेड इट एज एन एट्रीब्यूट, ओके। एंड हर बार जितनी बार भी कॉल हो रहा है उसको मैंने आई को प्लस इक्वल टू 1 कर दिया ताकि एक बार बढ़ जाए, ठीक है। बट अभी तो हमने सिर्फ मैसेज को डिक्लेयर किया है, हमने इस मैसेज को कहीं पे पब्लिश नहीं किया। तो नाउ व्हाट वी हैव टू डू इज वी हैव टू पब्लिश दिस मैसेज अपॉन आवर टॉपिक, ठीक है। तो उसके लिए बेसिकली कमांड है सेल्फ डॉट पब्लिशर डॉट पब्लिश, ठीक है। तो जो तुमने यहाँ पे पब्लिशर का कंपोनेंट बनाया, पब्लिशर का इंस्टेंस बनाया था, तुम्हारा पब्लिशर इंस्टेंस कुछ भी हो सकता है, जो मैंने यहाँ पे ऐसे पब्लिशर 1 नेम दिया था, तो तुम्हारा कुछ और हो सकता है। जस्ट एक्सेस दैट सेल्फ डॉट पब्लिशर 1। अब इसमें एक फंक्शन होता है पब्लिश का, ठीक है। हमें पब्लिश क्या करना है, मुझे अपना मैसेज पब्लिश करना है, ओके। हाउ डज इट वर्क? तुमने एक इंस्टेंस बनाई थी, अब इस इंस्टेंस का काम क्या है, ये एक मैसेज लेगा इनपुट में, मैसेज कुड बी ऑफ टाइप जो मैंने यहाँ पे डिक्लेयर किया था, जैसे यहाँ पे स्ट्रिंग टाइप डिक्लेयर किया था, तो स्ट्रिंग टाइप का मैसेज लेगा, उसको पब्लिश करेगा ऑन दिस टॉपिक, जो टॉपिक मैंने यहाँ पे डिफाइन किया, ठीक है। uh, यहाँ पे मेरा हो गया, ये पूरी चीजें बैकग्राउंड में चल रही है। बट नाउ यू ऑल्सो हैव टू मेक, अभी तुम्हें ये भी डिक्लेयर करना है कि मैं तुम्हें तुम्हें अपने कंसोल लॉग में दिखे, ठीक है। तो उसके लिए भी कुछ चीजें चाहिए तुम्हें, राइट। सो दैट वुड बी योर गेट लॉगर डॉट इन्फो। तो जिस तरीके से हम डीबग करने के लिए नॉर्मल जो नॉर्मल पाइथन है उसमें हम डीबग करने के लिए ये यूज करते हैं कि प्रिंट लगा दो हर जगह पे। बट हम यहाँ पे क्या करेंगे, हमारे पास एक स्पेशल फंक्शन होता है गेट लॉगर डॉट इन्फो, क्योंकि एक बार तुम्हारा कोड चल गया, इफ यू आर पब्लिशिंग वन थिंग, तो पब्लिशिंग दिखाने के लिए दिस वुड बी द फंक्शन जो लॉग करता रहेगा इन वेन एवर योर होल रोस्टू कमांड इज पब्लिश, ठीक है। रोस्टू कमांड जैसे एग्जीक्यूट हुआ है उसके बाद कुछ चीजें लॉग हो रही होंगी। जैसे तुमने लास्ट टाइम देखा था, एक मैसेज आता है, ठीक है, इन्फो आती है, डिफरेंट इन्फो अबाउट इट, ठीक है। सो वो चीजें इसके थ्रू बेसिकली पब्लिश हो रहा है। अब इसमें मैं ये डाल सकता हूँ कि हेलो आई एम पब्लिशिंग परसेंट एस, आई एम पब्लिशिंग मैसेज और डेटा। अब तुमने एक पूरी फुल फ्लेजेड पब्लिशर क्लास बना ली, तुमने एक पूरी फुल फ्लेजेड पब्लिशर क्लास बना ली इसमें, ठीक है। बट अभी हमें इस पब्लिशर क्लास को यूज भी करना है। गो थ्रू द कंपोनेंट्स अगेन। पब्लिशर क्लास बनाई, उसको मैंने उसका पेरेंट इनहेरिट किया, पेरेंट को लिया, पेरेंट क्या था, नोड था, ठीक है। फिर मैंने उसका इनिट कंस्ट्रक्टर बनाया, कंस्ट्रक्टर में नोड की जितनी भी चीजें थी वो मैंने इस चीज को यहाँ पे डिफाइन करके बना ली। एक मैंने नोड बना लिया माई फर्स्ट पब करके, ठीक है। उसकी जितनी भी चीजें थी मैंने उसको इनहेरिट कर ली। अब मैंने मुझे कुछ चीजें और बनाई थी, मुझे क्या बनाना था, मुझे इसमें पब्लिशर बनाना था। तो पब्लिशर के लिए मैंने क्रिएट पब्लिशर का यूज किया, उसमें मैंने स्ट्रिंग मैसेज डाला, उसको मैंने टॉपिक करके टॉपिक नेम से टॉपिक पे मैंने पब्लिश किया मैसेज, जिसका क्यू साइज 10 है। फिर मैंने एक टाइमर बनाया। टाइमर फंक्शन क्या कर रहा है, टाइमर फंक्शन हर 0.5 सेकंड्स पे एक फंक्शन को कॉल कर रहा है। वो फंक्शन क्या कर रहा है, वो फंक्शन जब भी कॉल होता है बस एक मैसेज है उसको पब्लिश कर देता है। मैसेज क्या है, हेलो वर्ल्ड आई। आई क्या है, एक लॉगिंग नंबर है, ठीक है, कुछ भी डाल सकते। ओके, एट दिस पॉइंट यू हैव क्रिएटेड योर ओवरऑल your overall uh, publisher. Okay, now you can use it anyway. तो मुझे यूज करना तो मैं एक means फंक्शन बना देता हूँ, तो def mean
Publisher. First publisher. First publisher. ओके, अब मुझे अपनी जो पब्लिशर क्लास मैंने बनाई है उससे उसे मुझे यूज करना है, ठीक है। अब इसमें पब्लिशर क्लास को यूज करने के लिए क्या करूंगा? ओके, सबसे पहले मैं एक तो अपना आरसीएल पाई चलाऊं, ठीक है। आरसीएल पाई डज नीड इट्स इनिट फंक्शंस, ताकि तुम इस नोड को एक्टिवेट कर सको। तो तुम्हारा जो रॉस का बैकएंड सिस्टम है उसमें तुम्हें इस नोड को पुश करना है। तो उस नोड को पुश करने के लिए सबसे पहले तुम आरसीएल पाई चला रहे होगे। आरसीएल पाई जैसे एक्टिवेट हो गया, तुमने एक नोड बना ली। नोड तुम्हारी है, लाइक नोड तुम्हारा पब्लिशर है, पब्लिशर के अंदर एक नोड है। अब तुम इसको स्पिन कर दोगे, ठीक है। आरसीएल पाई स्पिन होता है और दिस इज टेक्निकली तुम इसको ऐसे समझ सकते हो, एक्टिवेट माई पब्लिशर। ओके, अगर तुम ये नहीं करोगे तब तक रॉस अपने क्लाइंट साइड पे इसको यूज नहीं कर रहा हो, एंड इसको लाइक इट वुड नॉट बी इन एन एक्टिव फेज, इट वुड बी जस्ट अ डंप ऑफ कोड जहाँ पे तुम इस चीज को यूज कर रहे हो। फिर आरसीएल बाइडर स्पिन होगा, माई पब को यूज करेगा, इस पूरी चीज को यूज करेगा, ठीक है। इस पब्लिशर को एक्टिवेट रखेगा एंड उसके बाद जैसे ही इसका काम खत्म हो गया, इसका काम कैसे खत्म हो सकता है? इधर अगर मैंने यहाँ पे सेल्फ डिस्ट्रक्ट कुछ डाला होता कि आ, जैसे अभी ये तो इन्फिनाइट लूप है, ठीक है, इन्फिनिटली चलता रहेगा। बट अगर मैंने डाल दिया था कि इतना काम हो जाए उसके बाद खत्म हो जाए, ठीक है, तो उसके बाद वो अपने आप डिस्ट्रॉय कर देगा नोड एंड आरसीएल पाई को शट डाउन कर देगा फॉर दिस पर्टिकुलर पब्लिशर, दिस पर्टिकुलर स्क्रिप्ट, ठीक है। अभी क्योंकि इन्फिनिटली चल रहा है, तो जब भी मैं कंट्रोल सी करूंगा तो वो क्या करेगा, डिस्ट्रॉय कर देगा पहले नोड को एंड फिर आरसीएल पाई को शट डाउन कर देगा। मैं बोल देगा कि जितनी भी क्लाइंट साइड लाइब्रेरीज है वो सब अभी यूज होना बंद हो जाएंगे। इसका न्यूज क्या है, मतलब वाई नॉट सीधा सीधा हम जैसे नॉर्मली सॉरी, वाई नॉट सीधा सीधा हम जैसे नॉर्मली अपने किसी भी चीज को यूज कर रहे हैं, किसी भी क्लास को यूज कर रहे हैं, तो हम उसको इसको ऐसे यूज कर सकते हैं। इट इज बिकॉज जब तुम रॉस के बैकएंड के साथ कोलैबोरेट कर रहे हो एंड यू आर मेकिंग द थिंग्स गो विद हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर, तुम्हें कुछ चीजों का सैनिटी चेक्स रखने पड़ता है, ठीक है। एंड दिस इज फॉर दैट। सो बेसिकली रॉस के सिस्टम के ऊपर अपलोड करने के लिए तुम्हें ये सब चीजें ऐसा समझ सकते हो तुम ठीक है। एंड इन जनरल इफ नेम इक्वल टू मी, एंड एट दिस पॉइंट दिस इज योर ओवरऑल पब्लिशर जो तुमने कोड कर लिया है, ठीक है। दिस वुड वर्क, दिस वुड टोटली वर्क एज अ प्रॉपर पब्लिशर जो तुम्हारा चार्टर की तरह काम करे, ठीक है। किसी को कोई डाउट यहाँ तक? इज एवरीबडी फॉलोइंग? ठीक है, सो लेट्स गो अहेड विद सब्सक्राइबर, ठीक है। अब सब्सक्राइबर के लिए मैं ज्यादा मेहनत नहीं करूंगा, सब्सक्राइबर बहुत ज्यादा सिमिलर होता है कि पब्लिशर, ठीक है।
सारे उल्टे काम करने हैं, जो पब्लिशर पब्लिश कर रहा है इसको सब्सक्राइब करना है। तो आई जस्ट कॉपी एंड पेस्ट। इस फाइल को मैं नेम चेंज कर लूंगा एंड आई जस्ट नेम इट एज माय सब्सक्राइबर। अब सब्सक्राइबर में क्या क्या चीजें चेंज हो रही होंगी ये देखो, ठीक है। सो अगेन द इंपोर्ट्स वुड बी टोटली सेम, ठीक है। तुम्हें वही नॉर्मल चीजें इंपोर्ट करनी है, आरसीएल पाई मैसेज एंड आरसीएल पाई का नोड, क्योंकि सब्सक्राइबर ये एक नोड होता है, ठीक है। बट अब यहाँ पे चीजें थोड़ी सी चेंज हो रही होंगी। अब यहाँ पे जो तुम्हारा कॉल बैक फंक्शन है वो अलग होगा, तुम्हारा जो बेसिकली सब अब तुम क्रिएट पब्लिशर की जगह क्रिएट सब्सक्रिप्शन करोगे, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ का कोड हटा देता हूँ। पहले हम लोग नोड को ले रहे थे एज माई फर्स्ट पब, अब हमें यहाँ पे नेम चेंज कर लेना। मैंने यहाँ पे माई फर्स्ट सब कर दिया, ठीक है। अपने हिसाब से कोई भी नेम डाल सकते हो। नाउ यू हैव टू क्रिएट अ सेल्फ डॉट सब्सक्राइबर वन, चाहे कोई भी लेजिट नेम डालना विच इज अलाउड। बहुत बड़ा नाम है तो मैं छोटे यूज करूँ। सेल्फ डॉट क्रिएट सब्सक्राइबर कर देंगे, ठीक है। क्रिएट सब्सक्रिप्शन। अब क्रिएट सब्सक्रिप्शन क्या करता है, क्रिएट सब्सक्रिप्शन को तुमसे क्या क्या चीजें चाहिए, ठीक है। क्रिएट सब्सक्रिप्शन को तुमसे कुछ चीजें चाहिए होंगी जो यहाँ पे हम डिफाइन कर लेते हैं। सबसे पहले यू नीड व्हाट इज द टाइप ऑफ मैसेज जो तुम रिसीव करना चाहते हो, ठीक है। तो क्या मुझे पता होना चाहिए कि कौन सा टाइप का मैसेज है? हाँ, मुझे पता होना चाहिए। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि तुम्हारे पास कौन सा मैसेज आ रहा है ये तुम्हें पता रहे, ठीक है। सेकंड चीज, तुम्हें वो चीज कौन से टॉपिक से लेनी है, ठीक है। हमारा टॉपिक क्या है, इफ एनीबडी रिमेम्बर इट वाज सिंपली टॉपिक, ठीक है। ये कंसिस्टेंसी मैटर करती है। जो टॉपिक मैंने यहाँ पे डिफाइन किया है वो टॉपिक यहाँ पे भी होना चाहिए। अगर मैं इसको कर दूं टॉपिक वन, अब वहां पे टॉपिक लिख दूं, ठीक है, तो दिस वोंट वर्क, दिस वुडंट एवर वर्क, ठीक है। क्योंकि वो पब्लिश अलग टॉपिक पे कर रहा है, ये अलग टॉपिक से ले रहा है, ठीक है। सो इट वोंट वर्क। सो टू मेक इट वर्क यू नीड टू हैव टॉपिक एट बोथ साइड्स, ठीक है। अब मैं कॉल बैक फंक्शन डिफाइन करूंगा, क्योंकि आई डोंट नो कि कितना डेटा आ रहा है, क्या डेटा आ रहा है, ठीक है। उस डेटा को प्रोसेस कैसे करना है, तो उस डेटा को किस तरीके से हैंडल करना है, उसको किस तरीके से वर्कआउट करना है, उन सब चीजों के लिए तुम्हें एक लिसनर फंक्शन, लिसनर कॉल बैक को डिफाइन करना पड़ता है, ठीक है। सो लेट मी डिफाइन अ लिसनर कॉल बैक ओवर हियर। तो पहले तो इन सब चीजों को हटाए थे। प्राइमरी लिसनर, क्या इस फंक्शन का नाम लिसनर कॉल बैक ही होना चाहिए? नहीं, इसका नाम कुछ भी हो सकता है। मुझे लिसनर कॉल बैक पसंद है इसलिए मैंने, ठीक है, नथिंग एल्स। ऑब्वियसली तुम मीनिंगफुल नेम्स रखना चाहोगे, क्योंकि अब यहाँ पे लिसनर टाइप की चीजें बना रहे हैं, तो इसलिए हम यहाँ पे लिसनर कॉल बैक रख रहे हैं। अगर तुम्हें कुछ और फंक्शन यूज हो रहा हो उसका तो तुम वो रखोगे, ठीक है। एंड इतनी चीजें हो गई डिफाइन। अब जैसे क्यू साइज था जो हमने वहां पे डिफाइन किया था कि इतने क्यूज तक का मैं डेटा दे रहा था, तो वो तुम्हें यहाँ पे भी डिफाइन करना है, ठीक है। तो वहां पे मैंने 10 दिया था तो यहाँ पे भी मैं 10 ही यूज करूँ, ठीक है। टोटली फाइन। अब मैं एक बार सेल्फ डॉट सब यूज करूँ। ये चीज यहाँ पे बस इसलिए लिखी हुई है ताकि एरर्स ना आए रिगार्डिंग की वेरिएबल को यूज नहीं किया कहीं पे। बाकी इट हैज नो सिग्निफिकेंस, ओके। जस्ट कोड रीडेबिलिटी के लिए, कोड क्लीनलीनेस के लिए यूज होता है। अब आते हैं हम लोग अपने लिसनर कॉल बैक फंक्शन।
अब लिसनर कॉलबैक क्या कर, लिसनर कॉलबैक के पास कोई मैसेज आ रहा होगा, राइट? अब अगर उसने टॉपिक को सब्सक्राइब किया, उसके पास कोई मैसेज आ रहा है, ठीक है, यहाँ सबको पता है। मुझे उस मैसेज के साथ क्या करना है? अभी मेरे पास कुछ है नहीं मैसेज के साथ करने के लिए, तो मैं बस उसको लॉक कर दूँ। तो सेल्फ डॉट लॉगर इन्फो, सॉरी सेल्फ डॉट गेट लॉगर डॉट इन्फो, और उसमें मैंने मैसेज डाल दिया। कुछ नहीं कर रहा मैं अभी, मुझे बस ये चाहिए कि मेरा जो मैसेज है वो पब्लिश हो जाए, ठीक है, मेरा मैसेज मुझे दिख जाए। थोड़ा इसको अच्छे से लिख लेते हैं, चलो। I अच्छा, किसी को इस पूरी चीज से बीटी तो नहीं कि किस तरीके से मैं यूज कर रहा हूँ? दिस इज बेसिकली योर एक्सप्रेशंस, जो स्ट्रिंग एक्सप्रेशंस होते हैं। तुम्हें कोई भी डेटा चाहिए तो यहाँ पे स्ट्रिंग टाइप का डेटा चाहिए तो यहाँ पे मॉड्यूलस एस लगा के मैसेज डॉट गेटर डाल दो, ठीक है। अच्छा, अगेन आई एम नॉट पासिंग मैसेज ओवर, आई एम पासिंग मैसेज डॉट डेटा ओवर। मैसेज मैसेज इज एन ऑब्जेक्ट, ठीक है। मैसेज डज नॉट होल्ड एनी वैल्यू। मैसेज के अंदर एक वेरिएबल है डेटा, उसके अंदर तुमने अपना स्ट्रिंग मैसेज डाला हुआ है, ठीक है। प्लीज फोकस अपॉन दिस, ठीक है। मैसेज इज अ रैपर ऑफ एनी फंक्शन। जैसे जहां पे आरजीबी ए था, आरजीबी वाले में क्या था, आरजीबी ए तीनों वैल्यू है। तो सपोज अगर मैं आरजीबी ए यूज कर रहा था, तो फिर पे मैं मैसेज डॉट आर, मैसेज डॉट जी, मैसेज डॉट बी, ये सब चीजें कर रहा हूँ। इट इज अ टोटल रैपर फंक्शन, ठीक है, रैपर जी, रैपर इंस्टेंस। सो प्लीज नोट दिस। नीचे क्या चेंज हो रहा होगा, नीचे माई पपी माई सब्सक्राइबर हो जाएगा, जो तुमने ऊपर डिफाइन किया है, वही चीजें नीचे आ रही होंगी। सेम, पूरा सेम तरीके से चलेगा। अच्छा, यहाँ पे भी नेम चेंज कर रहे हैं ना, जहां जहां नेम चेंजेस हुए देख लेना। माई फर्स्ट सब हुआ है यहाँ पे सब हुआ है, यहाँ पे सब्स वन, क्रिएट सब्सक्रिप्शन, ये चीजें सेम रखनी है तीनों। स्ट्रिंग टॉपिक टेन सेम रहेंगी। ये चेंज हुआ, यहाँ पे एक कॉल बैक फंक्शन आएगा, एक बार डिक्लेयर कर दिया। यहाँ पे लिसनर कॉल बैक लिख दिया, ठीक है। लिसनर कॉल बैक मैसेज को ले रहा है, मैसेज का इनपुट ले रहा है। यहाँ पे मैंने सब्सक्राइबर वाला मुझे इंस्टेंस बनाना है, तो मैं सब्सक्राइबर वाले इंस्टेंस को ही स्पिन करूँ, ठीक है। हाँ, जब मेरा काम हो जाएगा तो मैं सब्सक्राइबर वाले इंस्टेंस को ही डिलीट कर दूँ, ठीक है। सब्सक्राइबर हमेशा छोटा रहता है, क्योंकि उसमें हमने इतने काम करने नहीं होते। जब करने होंगे तब तुम उसको बढ़ाओ। ओके, सो हैज एवरीवन फॉलोड मी टिल हियर? शो मी अ रेज ऑफ हैंड्स जिसका यहाँ तक हुआ। परसेंटेज इसका, परसेंटेज साइन सॉरी लगाना जरूरी है कि नहीं? और यार प्रियांशु को जरूरी होता है, लाइक इट इज बेसिकली कि जो परसेंटेज एस है उसकी करस्पॉन्डिंग ये डेटा है। अगर तुम वो कॉमा वाली चीज कर रहे होते, विच इज लाइक ब्रैकेट्स में होता है, जहाँ पे एफ स्ट्रिंग्स यूज हो रही होती है, वहां पे तुम्हारा अलग मेथड है। तो लाइक डिपेंड करता है तुम्हें जो यूज करना है, तुम उस हिसाब से यूज कर सकते हो। बट अगर परसेंटेज एस वाला यूज हो रहा है तो परसेंटेज बाहर लग रहा। Where did we define message dot data in subscriber class? Okay, so Shivanshu, message dot data isn't defined anywhere in subscriber class. ठीक है, how does it work? यहाँ पे जो create subscription, ठीक है, create subscription ने क्या किया, उसने टॉपिक को एक्सेस किया, ठीक है। एंड उसने क्या किया कि टॉपिक से उसको कुछ मैसेज मिल रहा था, ठीक है। अब उसने उस मैसेज को एज एन इनपुट दे दिया टू द कॉल बैक फंक्शन। ओके, दिस इज हाउ द कॉल बैक फंक्शंस इवन वर्क। तुम्हारे पास, तुमने फंक्शन डिफाइन किया, फंक्शन किसी चीज से मैसेज एक्सेस कर रहा है, एंड उस चीज को इस फंक्शन में पुट अप कर दे रहा है, ठीक है। दिस इज हाउ इट वर्क्स। हमने मैसेज डेटा को कहीं पे डिफाइन नहीं किया इन सब्सक्राइबर, हमने मैसेज और डेटा को पब्लिशर में डिफाइन किया था, क्योंकि हमें वहां पे भेजना था, इसलिए हमने डिफाइन किया, ठीक है।
सब्सक्राइबर में हमें मैसेज को गैदर करने के लिए मैंने कॉल बैक फंक्शन बनाया हुआ है एंड मैं उसके हिसाब से एक लाइक मैं वो चीजें वो बेसिकली क्रिएट सब्सक्रिप्शन का काम कि स्ट्रिंग टाइप का मैसेज, स्ट्रिंग टाइप का ऑब्जेक्ट टॉपिक से उठाएगा एंड वो लिसनर कॉल बैक में पुट करेगा। ठीक है, ये काम कर रहा है पूरा क्रिएट सब्सक्रिप्शन का फंक्शन। ओके, एंड ये फंक्शन क्या कर रहा है, ये फंक्शन हमारी कस्टमाइजेबिलिटी है कि मुझे जो भी करवाना है मैं करवा दूं, क्योंकि इतने छोटी सी स्पेस में मैं यहाँ पे एक नया फंक्शन डिफाइन नहीं कर सकता। आई एम जस्ट पासिंग अ फंक्शन ओवर हियर, दैट इज हाउ कॉल बैक फंक्शन वर्क्स, कि मैं पूरा फंक्शन यहाँ पे पास कर दूं एंड वो फंक्शन ही है। ठीक है, उस फंक्शन में मैं अभी इतना यूज कर रहा हूँ कि मुझे बस वो प्रिंट करके दे मैसेज को। इज दैट फाइन? समझ गया? ठीक है, सो नाउ यू गाइस वुड बी लाइक सर अब तो बन गया, पब्लिशर बन गया, सब्सक्राइबर बन गया, एंटर करते हैं रन हो जाएगा। नहीं, ये ऐसे वर्क नहीं कर रहा होता। ठीक है, अब तुम्हें इनकी डिपेंडेंसीज बनानी है। सो बेसिकली अभी हमें इन्हें इंटीग्रेट करना है अपने पैकेज के साथ। ठीक है, तुम अपने पैकेज के साथ किस तरीके से इंटीग्रेट करो। सबसे पहले तो तुमने जो भी डिपेंडेंसीज यूज की है, क्या क्या डिपेंडेंसी यूज की थी? हमने स्टैंडर्ड मैसेजेस यूज किया था, हमने आरसीएल पाई यूज किया था। क्या ये सब तुम्हारे इसमें है? नहीं है, पैकेज डॉट एक्सएमएल में होनी चाहिए। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल ओपन योर पैकेज डॉट एक्सएमएल। ठीक है, तो यहाँ पे एक्सपोर्ट में था अमेंड पाइथन बिल्ड टाइप एक्सेट्रा एक्सेट्रा, और ऊपर तुम्हारे लाइसेंसेस वगैरह थे, डिस्क्रिप्शन था। ठीक है, अब उसके नीचे तुम्हें दो लाइंस को ऐड करना है। कौन सी दो लाइंस को ऐड करना है? यहाँ से। ठीक है, इसके नीचे सी द लाइंस कौन सी यूज हो रही है। ठीक है, एग्जीक्यूटेबल डिपेंडेंसी होती है, तो उसके हिसाब से तुम आरसीएल पाए। तुम एक तो आरसीएल पाई को इंपोर्ट कर रहे थे, तुम एक स्टैंडर्ड मैसेजेस को इंपोर्ट कर रहे थे। ठीक है, वाई इज दिस इम्पोर्टेंट? ताकि ये जब भी कोई और यूज कर रहा होगा तो उसे पता रहेगा कि कौन कौन सी डिपेंडेंसीज को डाउनलोड करना है। ठीक है, एंड ग्रॉस ही अपने एंड से खुद कर लेगा कि इन सबको एक्सेस करेगा, तो ओवरऑल फंक्शनैलिटी इज इम्प्रूव्ड, मेंटेन्ड। इसको सेव कर लो। अब हमें सेटअप को चेंज करना है, हम जाएंगे सेटअप डॉट पाई में। ठीक है, ओपन योर सेटअप डॉट पाई। अच्छा, क्या सबने दो मैसेजेस डाल दिए? लाइक मैं एक बार चैट पे डाल दूँ। नोटिस मैंने कहाँ पर डाला? लाइसेंस के मैंने नीचे डाला इसको। ठीक है, हाँ मैंने इनको छेड़ा नहीं बिल्कुल भी, ये जो भी लिखा हुआ है यहाँ पे मैंने सबको ऐसे ही रहना है। अब मैं जाऊंगा सेटअप डॉट पाई। अब सेटअप डॉट पाई में तुम यहाँ पे ऐसे डिफरेंट चीजें देख रहे हो। पैकेज नेम है। ठीक है, आई गेस रोजेट में ये सेटअप टूल्स आई हैं, इसको भी इंस्टॉल कर लेंगे कोई। अह, यहाँ पे पैकेज नेम है, वर्जन है, सब चीजें पिछले वाले से मेंटेन है, मैंने कुछ चेंज नहीं किया। ठीक है, अब इसमें मैं क्या करूंगा, मैं एक एंट्री पॉइंट क्रिएट करूंगा। एंट्री पॉइंट में क्रिएट करूंगा अपने टॉकर के लिए। ठीक है, सो टॉकर के लिए मैं लेट से एक पूरा पूरा स्क्रिप्ट मैंने रेडी कर लिया अपना पब्लिशर के नाम पे। ठीक है, तो इट वाज बेसिकली तुम कंसोल स्क्रिप्ट, कंसोल स्क्रिप्ट्स में तुम्हारा क्या काम है? कंसोल स्क्रिप्ट्स में तुम बेसिकली वो स्क्रिप्ट्स डालोगे जिनके तुम्हें एग्जीक्यूटेबल्स बनाए कि ये एज अ प्रोग्राम चले। ठीक है, जैसे मैं चाहता हूँ कि टॉकर एज अ प्रोग्राम चले,
ठीक है। तो मैं यहाँ पे टॉकर करके स्क्रिप्ट लिखूंगा कि शॉर्ट फॉर्म में टॉकर रहे नाम, जिसकी जो वैल्यू है वो होगा पैकेज 1, क्योंकि इस फोल्डर में वो पैक 1 में है। तो पैकेज 1 डॉट मेरे फाइल का नाम गया माई पब्लिशर। सो माई पब्लिशर और उसका मेन जो फंक्शन, मुझे मेन यूज करना है, मुझे आगे कुछ यूज करने का इम्पोर्टेंट। सो दिस इज हाउ आई डिफाइन दिस थिंग। लाइसेंस का काम क्या होता है? इट इज नॉट यूज अभी हमारे लिए लाइसेंस का, बट जहाँ पे तुम कुछ प्रोप्राइटरी चीजें बना रहे हो तो एंड व्हेन इट इज लाइक, जैसे अगर मैंने कस्टमाइज एएमआर बनाया, मैंने अपना खुद का बॉट बनाया हुआ है विच इज नॉट ओपन सोर्स अगेन, तब मैं लाइसेंस डिक्लेयर कर रहा होता हूँ क्योंकि रॉस ओपन सोर्स है, तो ये कोड भी ओपन सोर्स ही है मोस्टली। ठीक है। बट अगर मुझे क्लेम करना है कि ये जो पूरी चीज है वो मेरी खुद की है, ठीक है, तो उसमें मेरा कुछ लाइसेंस होता है। तो लाइसेंस इज वेरीफाइड बाय अपाचे 2.0 एक्सेट्रा एक्सेट्रा। एक बार तुम एक्सप्लोर कर लेना, लाइक मैंने भी खुद इतना इसमें एक्सप्लोर नहीं किया लाइसेंसेस में, बिकॉज नेवर नीडेड, ओपन सोर्स में काम किया मैंने, तो haven't need like haven't had, मतलब मुझे जरूरत नहीं। ओके एंड अब तुम्हें अपनी जो सेटअप डॉट कन्फिग फाइल है उसको चेंज करना है। अब सेटअप डॉट कन्फिग में क्या डालना है? लेट मी ओपन इट फर्स्ट। यहाँ पे देखो, तुम्हारे पास डेवलप है एंड तुम्हारे पास इंस्टॉल है। ठीक है। डेवलप एंड इंस्टॉल में तुम्हारे पास जो पैकेजेस है उन्हें ध्यान देना। पैकेजेस रहेंगे बेस, पैक 1 एंड ये, बस ये मेन देख लेना कि ये सेम है कि नहीं। जो तुम्हारा ये पैकेज तुमने बनाया था ये नेम मैच करना चाहिए, क्योंकि फिर यही स्क्रिप्ट आगे यूज हो रही है, यही पैकेज आगे डेवलप हो रहा है। मतलब अदरवाइज अगर तुमने यहाँ पे ब्लैंक छोड़ दिया, ये डाला ही नहीं है, तो ये पैकेज कहीं पे यूज भी नहीं होगा। ठीक है। ओके, आई गेस दिस इज जस्ट ऐसे ही दे रहा है, सो तुम इसको इग्नोर कर सकते हो। सबने यहाँ तक फॉलो कर लिया, तो अभी हमने एक टॉकर स्क्रिप्ट बनाई है, अब मेरा टॉकर चल जाएगा। बट मैं चाहता हूँ कि मेरा टॉकर पब्लिशर दोनों साथ साथ में चले। तो उसके लिए मैं अपने पब्लिशर की कॉन्फ़िग फाइल सेटअप करूंगा। सो वो कैसे होगा? अब मुझे सेम जैसे मैंने टॉकर के लिए एक एंट्री पॉइंट सेटअप किया था ना, वही चीज मुझे यहाँ पे भी सेटअप करना है। सो सी, फॉलो द सेम प्रोसीजर। माई सब्सक्राइबर में क्या क्या है? स्टैंडर्ड मैसेजेस एंड आरसीएल पाई है, वो मैंने पहले पैकेज डॉट एक्सएमएल में डाल दी थी। सेटअप कॉन्फ़िगरेशन में मेरा पहले से पाई मेरा पैकेज है। सेटअप डॉट पाई में मुझे एंट्री पॉइंट बनाना है। 3 टास्क। ठीक है। तो अब मुझे बस थर्ड टास्क रह गया, कॉमा डाल के एक मैं लिसनर बना। ठीक है। तो लिसनर इशू पैकेज 1 डॉट माई सब्सक्राइबर, उसका मिल। ठीक है। यहाँ तक मैंने डिफाइन कर दिया। अब मुझे इसको बिल्ड एंड रन करना है। एक बार चेक कर लेना कि तुम्हारी सारी फाइल सेव है कि नहीं है। ठीक है। सेव एवरी फाइल एंड अब तुम्हें इसको पूरा बिल्ड करके रन करना। तो बिल्ड एंड रन के लिए सबसे पहले तो तुम इस पैकेज से बाहर जाओगे। अ, तुम्हें अपने वर्क स्पेस वाली डायरेक्टरी में आना है। ठीक है। तुम्हारी वर्क स्पेस डायरेक्टरी थी रॉस 106 वर्क स्पेस।
तो cd dot cd dot ठीक है। एक बार के लिए सारी की सारी जो डिपेंडेंसीज है मैं उनको डाउनलोड करना चाहूंगा। दिस इज द थिंग विच यू डू इन द फर्स्ट ग्रुप। जब तुम फर्स्ट टाइम बिल्ड करो, अभी हम फर्स्ट टाइम बिल्ड कर रहे हैं तो इसलिए हम लोग ये काम करें। तो आई वुड गो रॉस डिपेंडेंसीज, इंस्टॉल माइनस आई इज फॉर माइनस आई तुम्हारे एक पाथ के लिए, ठीक है। वेट, एंड माइनस माइनस फ्रॉम पाथ। तुम्हारा पाथ क्या होगा, तुम्हारे पाथ में होगा एसआरसी। एसआरसी में सोर्स में तुम्हारे पास जो भी है वो सब चीजें इंस्टॉल कर लो। रॉस का डिस्ट्रो देना पड़ेगा। हमारा रॉस डिस्ट्रो है हम्बल, ठीक है, एंड माइनस। इन मोस्ट केसेस सारी डिपेंडेंसीज इंस्टॉल्ड रहेंगी। सो हाँ, जैसे सारी इंस्टॉल्ड ही थी तो फिर कुछ ज्यादा उसको करना नहीं पड़ा। प्रबोध, वी डिडंट डू एनीथिंग इन सेटअप डॉट config। वी जस्ट चेक कि उसमें तुम्हारा क्या बोलता है, तुम्हारा जो पैकेज नेम है वो है कि नहीं, ठीक है। इफ देर इज नो पैकेज नेम विच में हैपन समटाइम्स इफ द बिल्ड इज नॉट प्रॉपर, तो वो बीटी दे सकता है, वो पैकेज ही बिल्ड नहीं होगा। अगर है तो फिर दैट इज अ गुड थिंग, वो अब वो पैकेज बिल्ड होगा, ठीक है। द नेम इज सिग्निफाइंग कि वहाँ पे वो पैकेज बिल्ड हो सकता है। ओके, अब इसके बाद हमें बिल्ड करना है। सो यू कैन डू कॉलकॉन बिल्ड। ठीक है। अब कॉलकॉन बिल्ड ने क्या किया, कॉलकॉन बिल्ड ओके, कॉलकॉन बिल्ड बेसिकली बिल्ड योर फर्स्ट लाइब्रेरी पैक। अननोन डिस्ट्रीब्यूशन ऑप्शन टेस्ट रिक्वायर्ड, लाइक तुम इसको इग्नोर कर सकते हो। इन जनरल सेटअप टूल्स वार्निंग्स देता रहता है, ठीक है। इफ इट इज फिनिश तो मेरे हिसाब से सही होना चाहिए, बट बाकी देखते हैं। उसके बाद तुम्हें इसको सोर्स करना होता है। सो यू नीड टू सोर्स इंस्टॉल सेटअप डॉट बैश। सोर्स इंस्टॉल सेटअप डॉट बैश। पैकेज, उसमें तुम्हारे पास स्टॉकर है, हमारा रन दो। क्या सबने यहाँ तक फॉलो किया था मुझे? आई डोंट थिंक, मैं शायद से कुछ ज्यादा फास्ट चला गया। आई जस्ट रिपीट द कमांड्स अगेन। या सो द कमांड्स आर बेसिकली, सबसे पहले तो तुम कॉलकॉन बिल्ड करोगे, ठीक है। उसमें एक बार एरर पढ़ लेना। इसमें एरर्स आर रिगार्डिंग सम टेस्ट जो हमने वैसे भी यूज नहीं किया है, तो हमें उससे फर्क नहीं पड़ता। सो इट इज टोटली फाइन। कॉलकॉन बिल्ड के बाद तुम्हें सोर्स करना पड़ेगा, ठीक है। सोर्स क्या बोलता है कि सोर्सेज जो तुमने लास्ट टाइम बिल्ड किया था, अब मैंने उसको अपडेट कर दिया है, तब जो नया वाला अपडेट है तुम उसे यूज करो, ठीक है। दैट इज वाई यू ऑलवेज सोर्स द न्यू इंस्टॉल, ठीक है। अब इस चीज को तुम सोर्स करो ताकि अब ये वाली जो फाइल्स है सारी यूज हो सके इन द न्यू कमांड्स। उसके बाद तुम ये करोगे रॉस टू रन पैक वन। रॉस टू रन करना क्योंकि तुम एक स्क्रिप्ट को रन करने वाले हो। फिर तुम्हारा पैकेज नेम एंड देन टॉपर, ठीक है। इज इट फाइन? रॉस टू रन पैक वन टॉपर। एंड ये हमें हमारे वाले कमांड दे देता है जैसे हमने पहले में देखा, ठीक है। तो इसको मैं चला देता हूँ। अब मैं एक और नया टर्मिनल खोलता हूँ ताकि मैं लिसनर को चला सकूँ। अगेन बिकॉज ये अभी उसमें नहीं है, वर्क स्पेस फोल्डर में, तो मैं वर्क स्पेस फोल्डर में जाऊंगा।
मैं सबसे पहले सोर्स करूंगा, ठीक है, ताकि सारी चीजें सही रहे। देन रॉस टू रन वन, इसमें लिसनर है। ओके, सो लिसनर स्टार्ट्स हियरिंग फ्रॉम 93rd। ठीक है, यहाँ पे लिसन कर, यहाँ पे पब्लिश कर रहा है, एंड दिस वन इज लिसन। 150, 150, 60। इस पूरे प्रोसेस में अभी तक किसी को कोई एरर आया? कोई भी टी? सबने फॉलो कर लिया था? गिव मी a raise of hands if everybody has followed properly। सबका चलेगा? ठीक। Okay guys, that was all for today।